हेलो, वेलकम टू द लीगल पॉडकास्ट बाय फिनिक्स बी लीगल। आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल के लीगल पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी एक्सप्लेन। साथ ही साथ में विल बी टेकिंग अबाउट दी विल बी टेकिंग 3 important landmark judgments regarding Article 12. These are State of Assam versus Barak उपाध्यका व डीवी कर्मचारी, रमेश ahluwalia वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आईवी सीडा कॉन्सियो वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। तो हम ये 3 जजमेंट लेंगे। वैसे आर्टिकल 12 को लेके बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं, बट ये 3 जजमेंट अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं, सवाल पूछा जाता है। तो वी विल बी टेकिंग अबाउट दीज विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल these three judgments, and the mode of एक्सप्लेनेशन इन दिस वीडियो वुड बी बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं मतलब मिक्स करके मैं बोलूँगी, बिकॉज़ मुझे लगता है वो सबसे अच्छा तरीका होता है आजकल के बच्चों को समझाने का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज अबाउट द आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के में आता है, और ये पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। पार्ट 3 के जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 12 को डाला गया है, और डेफिनेशन डिफाइन किया गया है इसमें स्टेट। नाउ यहाँ पे दो चीज समझने की जरूरत है। जो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो होता है, हम स्टेट का मतलब समझते हैं कि कोई राज्य होगा, कोई कंट्री होगा जिसको हम स्टेट के रूप में लेते हैं। हियर इन दिस डेफिनेशन, जो स्टेट का जो डेफिनेशन लिया गया है, दैट उसको दैट इज केप्ट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन टू द फैक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर स्टेट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ऑल राइट, सो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द actual state. Actually, it has defined what would come under the definition of state, and this definition is taken to the fact that of the public duty. So here it can be anything. So if when we talk about the definition, here the definition has been written in this part: unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India. So here the government is spoken about the parliament of India, and the government and the legislature of each of the state is also spoken about the legislature, legislature of the each state, and all local and other authorities. Okay, the private bodies, it has talking about the private bodies within the territory of India or under the control of the government of India. So here the concept of state is very different what we actually think about. It is basically about the organizations. What are the organization which will be considered as a state within the ambit of the fundamental rights, whom we can file a case. See, fundamental rights can be invoked only against a state, right? So can I invoke a file a writ petition against a private person? The answer is no. But if the state is there, so I'll be filing a case only against India, that is a state, right? No, here they means that is the organizations which are coming within the ambit of the definition of the state, and against whom you can file and claim your fundamental rights. Later on the slide, I will be explaining what are which things are comes under the government and the Parliament of India, which institutes are come under the government and legislature, and all that. That also will be explained in the next video. So here it is: legislative and executive organ of union of government. So what would come under that? Indian government, Indian parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha. Alright, this is what it has been defined. Legislative and executive organ of the state government. So what would come under that? State government, state legislature, legislative assembly, legislative council of state. Now let's go to the other one. All local authorities. What will come under the local authority? Municipalities, panchayat, district boards, improvement trust, municipal corporation, nagar palika, nagar panchayat, jila panchayat, mandal panchayat, and gram panchayat. Now statutory and non-statutory authorities or also comes under the definition of the state. It would be National Human Rights Commission, National Commission for Women, National Law Commission, National Green Tribunal. And non-statutory authorities like Central Bureau of Investigation, Central Vigilance Commission, Lokpal and Lokayat. So when you see the list, आप जब ये लिस्ट को देखते हो तो अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेशन हुआ है और इस लिस्ट में जो जो ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाया गया है, तो यू कैन गो अगेंस्ट देम एंड फाइल अ रिट एप्लीकेशन फॉर क्लेमिंग ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स. सो एज आई सेड अर्लियर, जो डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12 जो दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ
फंडामेंटल राइट्स के पर्पस के लिए डिफाइन किया गया है। जो एक्चुअल होता है वी द कंट्री और स्टेट का जो डेफिनेशन है, और जो जियोग्राफिकल जो डेफिनेशन हम अगर मैं बोलूँ, दैट डेफिनेशन हैज नॉट बीन टेकन हियर. दिस डेफिनेशन इज only and purely for the purpose of the fundamental rights, so that where they perform a public function, public official function where they've been performed, then article 2026 can be invoked against them. चलिए अब हम आते हैं जजमेंट्स पे. जो पहला जजमेंट जो हम ले रहे हैं वो स्टेट ऑफ असम वर्सेस बराक उपत्यका डीवी कर्मचारी. ये 2009 का है, सुप्रीम कोर्ट का दिया गया है, 2 जजेस बेंच का है. जो डेट ऑफ जजमेंट थी वो 17 मार्च 2009 की थी. इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फैक्ट दैट ए कॉर्पोरेट बॉडी और ए कॉर्पोरेट सोसाइटी आंसर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. जो हम लोग लिस्ट देख रहे थे उसमें कॉर्पोरेट बॉडी और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को भी डाला गया था एज ए स्टेट के डेफिनेशन में आता. तो दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि कॉर्पोरेट बॉडी और कॉर्पोरेट सोसाइटी जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं. बट दैट डज नॉट मेक देम स्टेट गवर्नमेंट. पर वो स्टेट गवर्नमेंट के डेफिनेशन में नहीं आते हैं. ना ही उसके जो एम्प्लॉयज है वो सिविल पोस्ट या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कैटेगरी में वो नहीं आते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं आते हैं. दो इट कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, पर उसके जो एम्प्लॉय हैं, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी के या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट के डेफिनेशन में नहीं आते हैं. ऑलराइट, बिकॉज क्यों नहीं आते? क्योंकि जो कॉर्पोरेट बॉडी और कॉर्पोरेट सोसाइटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के डेफिनेशन में, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग डेफिनेशन है, उसके अंदर पे नहीं आते हैं. दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट बट नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. Therefore, the fact that a corporation may answer the definition of state does not mean that the state government is liable to bear and pay the salaries of an employee. So, though the definition of corporate body or corporate society comes under the definition of Article 12 state, but that does not make them state government. वो उसको state government नहीं बनाता है. Therefore, उसके अंदर के जो employee है उनको salary देने का काम state government का नहीं होता है. So, this is a very interesting case actually. If you have a time to read it full. इसमें और भी रीजनिंग ये बोला गया है. What clearly holds the field at present is the principle laid down and reiterated by the Constitution Bench of this court in Steel Authority of India versus National Union Waterfront Worker 2005. तो ये जो जजमेंट जो दिया था इस केस में, स्टेट ऑफ असम वाले केस में जो दिया था, ये उठाया गया था एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट से. और ये कौन सा केस था? वो था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स. इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था, वी विश टू क्लियर द एयर that the principal, while discharging public function and duties of the government companies, corporate society, which are instrumentalities or agencies of the government, must be subject to the same limitation in the field of public law, constitutional or administrative law, as the government itself, does not lead to the inference that they become agent of the center. जो पब्लिक ड्यूटी आप करता है, जो इसमें कॉरपोरेशन या कॉर्पोरेट सोसाइटीज वगैरह जो करते हैं, जो पब्लिक लॉ जो करते हैं, वो एक तरह से जो सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बेसिस पे तो आ जाता है, बट दैट डज नॉट मेक देम एन एजेंट ऑफ द सेंटर. वो सेंटर के एजेंट नहीं बनते हैं. For all the possess to bind such government for all such act, liabilities and obligation under various central and or state or under private law. तो जो डेफिनेशन जो क्लियरली इसमें बोला गया है, इसमें एक लिमिटेशन डाला गया है. इसमें लिमिटेशन ये बोला गया है कि ये जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज है या ये है, ये पब्लिक फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं, है ना. पब्लिक परफॉर्मेंस करने का एक्चुअल काम किसका है? जो स्टेट बॉडीज जो होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का होता है. जस्ट बिकॉज ये पब्लिक परफॉर्मेंस करते हैं, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेट के एजेंट हो जाते, क्योंकि ये जो काम कर रही है तो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटीज में कर रहे हैं. दो दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बट दैट डज नॉट मेक देम कि वो स्टेट गवर्नमेंट बन जाते हैं. दैट डज नॉट मेक देम अ स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट किया गया था, यहाँ पे एक लिमिटेशन क्रिएट किया गया था जो कॉर्पोरेट बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. अदरवाइज तो हर एक कोई अपने कॉर्पोरेट बॉडी बना देगा और बोलेगा मैं तो स्टेट हूँ, गवर्नमेंट को बोलेगा मेरा बस उसके सैलरीज दो. तो इस चीज को, इसका जो मैनिपुलेशन ऑफ लॉ ना हो पाए, इसके लिए इस डेफिनेशन को क्लेरिफाई
किया गया था, क्योंकि जो अगर आप आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में जाओगे तो वहाँ पे तो बस बता दिया कि ये बॉडीज हो सकती हैं जो स्टेट की डेफिनेशन में आती है, बट देयर आर पीपल हु कैन मिसयूज दिस लॉ फॉर देयर ओन पर्पस। तो उस हिसाब से तो हर एक चीज गवर्नमेंट बॉडी, तो एक गवर्नमेंट बॉडी होना और एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस हो जाता है, दो बोथ ऑफ देम वुड बी परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, बट जो अथॉरिटीज कहाँ से आ रही है, सैलरीज कहाँ से आ रही है, वो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट हैज बीन। तो स्टेट ऑफ असम को जो जजमेंट जो आया था वो बेसिकली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो जजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर आया था। अब हम जो सेकंड डेफिनेशन पे जा रहे हैं, सेकंड लैंडमार्क जजमेंट पे जा रहे हैं, वो है रमेश अहलूवालिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये दो जजेस बेंच का है और ये सितंबर 30 2012 का है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे जो स्टेट में जो कॉर्पोरेट बॉडी वो स्टेट है या नहीं उसको डिफाइन किया, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉडीज को डिफरेंशिएट किया गया था। दो दे बोथ कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट एज पर द आर्टिकल 12, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ देम, देयर इज अ डिफरेंट, ओके, one is a different thing and one another is a different thing, though they are doing the same function, all right। so वो उसमें डिफाइन किया था। इसमें क्या डिफाइन किया गया है, इसमें बोला गया है the court took note of the ruling in Ramesh Aluwa's state of Punjab, where it was held that writ petition would be maintainable if a private education institute discharged public function, more particularly imparting education. However, even by holding so, the decline to extend any benefit to the teacher as the case involved dispute question of fact. The court observed that merely because a writ petition can be maintained against the private individual discharging the public duties or for public functions, the same should not be entertained if the enforceable is sought to be secured अंडर द रेलम ऑफ प्राइवेट लॉ। यहाँ पे बात आ गई थी कि जो फंक्शंस होते हैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे हम प्राइवेट ही बोल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा डिफाइन करने के लिए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, दो वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है, दो इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, बट उसके अगर इंटरनल अफेयर्स पे कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हो गया है जो प्राइवेट लॉ के अंदर में डिफाइन होता है, तब वहां पे आप रिट पिटिशन नहीं फाइल कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे जो हो गया था शायद कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह को लेकर कुछ इशू था, उस पे आया गया था। तो उस पे कोर्ट ने बोला क्योंकि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हो गया, इसको हम नहीं लेंगे, इस चीज को हम नहीं ले सकते एज ए रिट पिटिशन। ऑलराइट, it would not be safe to say that the moment the private institution is amenable to jurisdiction, then their dispute concerning the said private institution is amenable to writ jurisdiction। जो writ jurisdiction का जो काम है, जो 5 हमारे जो रिट्स हैं, उनका काम और एक जो प्राइवेट लॉज का जो काम होता है वो कंप्लीटली अलग-अलग होता है। It largely depends upon the nature of the dispute and enforceable of the right by an individual against such institution। तो आपको जो डिस्प्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो रिट पे जाएगा या फिर वो प्राइवेट लॉ के अंदर में आपको दिया गया है बेनिफिट, आप उसमें जाओगे। The right which purely originate from a private law cannot be enforced taking aid of the writ jurisdiction respect to the fact institution is discharging the public duties or public function। As I said earlier, अगर आपका जो काम है, जो आपका जो डिस्प्यूट है, उसके लिए एक प्राइवेट लॉ पर्टिकुलरली बना हुआ है ना। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे क्वार्टर नहीं दिया गया, एक मैं काम कर रही हूँ, एक इसमें ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रही हूँ और अपने जितने भी काम कर रहे हैं उनको क्वार्टर मुझे प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या मैं वो क्वार्टर को लेकर आ जाऊंगी, रिट पिटिशन फाइल कर सकती हूँ? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट। आई हैव टू फाइंड सम अदर फॉर्म जहाँ पे मुझे जाना होगा। ऑलराइट, यस, अगर मुझे वो क्वार्टर इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज आई बिलोंग टू, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग, you know, inequality is happening, then I may be able to go it, but then there also is a gray area। All right, the scope of the mandamus is basically limited to enforcement of public duty। ये पब्लिक ड्यूटी को इन्फोर्समेंट करने के लिए मैंडामस बना हुआ आर्टिकल 226, एंड देयरफॉर इट इज एन आर्डेंट ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ द ड्यूटी कम्स विद इन द पेरिफेरल ऑफ द पब्लिक ड्यूटी, देयर मस्ट बी अ पब्लिक लॉ एलिमेंट इन एनी एक्शन। तो जो भी मतलब ये सीधा बोला गया कि दो वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट पे है, बट अगर कुछ प्राइवेट लॉ डिस्प्यूट हुआ है तो आप नहीं जा सकते। सिंपल सी बात है ना, अगर हम इवन हम गवर्नमेंट के ये होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी होते हैं, अगर हमारा कुछ डिस्प्यूट हो गया है गवर्नमेंट के साथ में ड्यूटी से लेकर, तो वो क्या रिट पिटिशन हम फाइल कर सकते हैं? नहीं। हम कहाँ जाते हैं? हम कैट में जाते हैं ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से डिफरेंट लॉ, उसके लिए ऑल टुगेदर एक प्राइवेट लॉ बनाया गया जो उस पे काम करता है। नहीं तो हर एक कोई एम्प्लॉय जो अपना डिस्प्यूट जो होगा उसको लेकर वो रिट पिटिशन फाइल करना पड़ेगा। एक अलग ट्राइब्यूनल बना हुआ है उस पर्टिकुलर लॉ को देखने, जबकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो एक पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है। दे स्टिल
उसको कैट में जाना पड़ रहा है, ना कि वो रिट पिटिशन फाइल करता है। अब हम आ जाते हैं लास्ट केस में, यहाँ पे आईवीसीडा कंज्यूमर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। ये है डीलिंग विद एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज टू वेदर प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ये पॉइंट कर रहा था जुडिशियल रिव्यू के ऊपर में, क्या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता, ये इस पॉइंट पे था। दो यहाँ पे वही बात आ गई थी कि जो स्टेट जो है वो अगर रिट पिटिशन फाइल करते हैं तो क्या उस पर हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। Held that while under the constitution scheme, a minority institution is free to select and appoint a principal without being bound by the principle of seniority alone, whether the appointment has been made by fairly and reasonably, and whether there is a violation of right of an individual eligible candidate by the minority institution by not adopting fair procedure, is liable to be tested in exercise of the power of judicial review under Article 226 of the Constitution. In the present case, where a person junior to the appellant who was appointed as in charge principal in the absence of regular principal was appointed to the post of principal of a minority institute, the court said that the minority institute may not be compelled to go by seniority alone but must follow a criteria which is rational, stating that the grievances of a citizen that he was treated unfairly cannot be ignored on the ground that a minority institute has autonomy or right of choice. The court said that the exercise of the right of choice has to be fair, non-discriminatory, and rational. The autonomy of a minority institute does not dispense with the requirement to act fairly and in a transparent manner, and the High Court, in exercise of a power of judicial review, is entitled to examine fairness of selection process. तो बेसिकली इस केस में ये क्या हुआ था, कोई सीनियरिटी को लेकर इसमें आ गया था कि जूनियर को अपॉइंट कर दिया गया, सीनियरिटी को अपॉइंट नहीं किया गया था, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट ये बोल रहा था कि हमारे पास तो पावर, हमारे पास ऑटोनॉमी है कि हम किसको अपॉइंट करें किसको नहीं अपॉइंट करें, सिलेक्शन का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। तो इसमें हाईकोर्ट को पास में पावर नहीं है जुडिशियल स्क्रूटनाइज करने के लिए या उसको रिव्यू करने के लिए। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, हाई कोर्ट के पास है, पावर है जुडिशियल रिव्यू करने के लिए अगर कोई नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है, राइट। सो क्योंकि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है, तो देयरफॉर इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द रिट्स, जो रिट्स में आप ला सकते हो, एंड देयरफॉर इवन इफ इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, सो यू हैव टू कनेक्ट द डॉट बेसिकली। सो फर्स्ट वील टेक अप द organization, a private institute, minority institute comes under definition of state, point first dot. The second is वहाँ पे discrimination हुआ, that comes under the definition of the fundamental rights की कोई violation हो रहा है, another dot, therefore the judicial review उसमें आ जाता है, the third dot. So we have to connect dots like that, so it will be easier for you to understand this case कि कैसे ये केस को कोर्ट ने करा कि वो स्टेट के डेफिनेशन में है, जो जिसके लिए आया गया वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, therefore हाई कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करने का। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। these are the only three law I've taken because otherwise वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। there are many more and if I will try to bring those other laws also which comes under the category of article 12 for other definition, जिसमें इसमें तीन अलग अलग definitions लिया गया है, तो दूसरे तीसरे और अलग definitions के लिए मैं लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय फॉर नाउ।